Yeah, hello everyone. We'll continue with chemical properties of amines. We are doing reaction with aryl sulfonyl chloride. This is also called as Heinsberg test. Now there are two tests we are going to do. One is Heinsberg test and one is also nitrous acid test to detect or differentiate between primary, secondary and tertiary amine. Now this question is generally asked a direct question. Give the distinguishing test for primary, secondary and tertiary amine. या तो फिर what is action of Heinsberg reagent on particular amine, they will give you like डाइथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, या तो ट्राइमिथाइल अमाइन के साथ Heinsberg reagent रिएक्ट हुआ तो क्या होगा. So they can ask you particular reaction, or generally they ask for 3 marks direct test. Give the distinguishing test for primary, secondary and tertiary amine using Heinsberg reagent. Now ये aryl sulfonyl chloride क्या है? Now we have never studied the structure of such a compound. तो पहले हम लोग ये aryl sulfonyl chloride क्या होता है. तो ये aryl का ग्रुप मतलब होता है बेंजीन. बेंजीन sulfonyl chloride. This benzene sulfonyl chloride is called Heinsberg reagent. तो MCQ में नीट जेई तक लेवल में भी ऐसा पूछते हैं. आउट ऑफ फॉलोइंग द Heinsberg reagent is. अभी कभी कभी ऐसे ही लिखा होता है aryl sulfonyl chloride, कभी लिखा होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कभी ये रिएक्शन मतलब ये सॉरी ये फॉर्मूला दिया होता है, कभी कभी बेंजीन रिंग ना देके वो C6H5 लिख देते हैं. तो 6C6H5SO2Cl that will be also Heinsberg reagent. कभी कभी C6H5 नहीं लिख के खाली AR लिखा तो भी वही हुआ. मतलब इट कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज. या तो पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ लिखा हुआ है, या तो ये बेंजीन रिंग की जगह पे C6H5 लिखा होगा, या तो AR लिखा होगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये स्ट्रक्चर लर्न करना है. अभी ये जब भी प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन से रिएक्ट करता है तो ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा and we'll get a compound like that. मतलब this is what the reaction actually happens. Okay, this is what we'll get. N-ethyl benzene sulfone amide हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे SO2NH ग्रुप जैसे अमाइड लिंकेज होता है ऐसे सल्फोनिल अमाइड ग्रुप बन जाता है. This is sulfonyl chloride, your sulfonyl amide. So that is what the product will get. So first to give the heading, sixth, Roman number 6, reaction with aryl sulfonyl chloride, Heinsberg test, and only copy down this reaction. Don't give this number 1. हम number 1, 2, 3 primary, secondary और tertiary के लिए अलग अलग लिखेंगे. So don't give any number, just write down the reaction. Benzene sulfonyl chloride when react with primary amine, this is how the product is formed. Okay, so copied the reaction. Now see how the test goes. ये टेस्ट देखो कैसे होता है पूरा. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन कैसे रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से. ये HCl बाय प्रोडक्ट है. यहाँ पे HCl इज अ बाय प्रोडक्ट, सो यू हैव टू राइट डाउन इट. बेंजीन सल्फोनिल अमाइड प्लस HCl. Now see how the reaction takes place. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना है. प्राइमरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, I told you we can write C6H5 instead of writing the whole thing. C6H5SO2Cl. एक H और एक Cl निकल जाएगा and we'll get benzene sulfone amide, alkyl benzene sulfone amide. Now this in alcoholic medium gives a clear solution. So benzene sulfonyl chloride in presence of base gives you a clear solution, which when react with acid in acidic medium it gives you a precipitate.
ओके तो ये टेस्ट में कैसा आएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड when react with primary amine in presence of base gives you a clear solution, and with in acidic medium it gives you an insoluble residue or precipitate. Now this is what happens when primary amine reacts. अभी देखो सेकेंडरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो इन अल्कलाइन मीडियम it gives you precipitate first and which does not react with acid, no reaction further. तो पहले 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 में क्या लिखना है, प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स यू क्लियर सॉल्यूशन एंड इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट. फिर सेकंड के लिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सेकेंडरी अमाइन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स यू प्रेसिपिटेट एंड विच फर्दर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, सो नो रिएक्शन. तो यहाँ पे क्लियर का प्रेसिपिटेट होता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेट ही रहेगा. Copy down both the reaction, then I'll show you for tertiary amine. Anybody copied up till here? Okay, I'll change the slide now. For tertiary amine, अगर तुमको नोट लिखना है तो लिख दो, प्राइमरी अमाइन reacts with benzene sulfonyl chloride. Primary amine reacts with benzene sulfonyl chloride in alkaline medium
gives clear solution. Primary amine with benzene sulfonyl chloride in alkaline medium gives clear solution, which further reacts with in presence of acid gives insoluble precipitate और gives precipitate. खाली इतना लिख दो तो भी चलेगा. अब यहाँ पे देखोगे ना तो एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, ये पोटेशियम, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड करना होता है तो पोटेशियम OH के साथ KOH बना देता है और यहाँ पे H वापस से आ जाता है. देखो यहाँ पे H था, वो OH के साथ वाटर निकल के पोटेशियम लग गया. Then I'll repeat 1 second, I'll explain this. यहाँ पे H और OH वाटर मॉलिक्यूल बन के चला गया इन अल्कलाइन मीडियम. फिर जब एसिडिक मीडियम ऐड करते हैं, मतलब वाटर ऐड करना है, तो जब वाटर वापस से ऐड करोगे तो KOH के साथ चला जाता है और H यहाँ पे वापस से लग जाता है, तो वापस से प्रेसिपिटेट आ जाता है. अभी यहाँ पे जब सेकेंडरी अमाइन अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है तो वाटर बन के निकल गया. H जो यहाँ पे NH था तो ये OH के साथ वाटर बन के निकल गया. अब यहाँ पे H है ही नहीं, तो इसलिए वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पा रहा है अल्कलाइन में, ये एसिडिक मीडियम से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हियर. यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था तो पोटेशियम का सॉल्ट बना, फिर वापस से हाइड्रोजन आ गया तो प्रेसिपिटेट आ गया. ओके अभी देखो फर्दर टर्शियरी, आई विल रिपीट दिस. प्राइमरी अमाइन reacts with benzene sulfonyl chloride in alkaline medium gives clear solution, and further in acidic medium forms insoluble mass या तो forms precipitate. Secondary amine reacts with benzene sulfonyl chloride in alkaline medium to give precipitate, which further does not react with acid. अभी टर्शियरी अमाइन देखो, टर्शियरी अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और यहाँ पे एक एडिशनल सॉल्ट बन जाता है, एडिशनल कंपाउंड बन जाता है, which further dissolves in acid to give you a clear solution. तो यहाँ पे बेंजीन टर्शियरी अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पहले अल्कलाइन मीडियम में एक इनसोलेबल मास देता है, which further dissolves in acid and gives you clear solution. मतलब पहले प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, क्लियर फिर प्रेसिपिटेट. सेकेंडरी अमाइंस में प्रेसिपिटेट रिमेन्स प्रेसिपिटेट और टर्शियरी अमाइंस में प्रेसिपिटेट बिकम्स क्लियर. आई विल रिपीट. पहले वाले में प्राइमरी अमाइन में we get clear solution which becomes precipitate in acidic medium. Secondary amine में we get precipitate which in acidic medium remains precipitate only, मतलब no reaction. Tertiary amine first gives you precipitate and in acidic medium it gives you clear solution. Okay, so first one clear then precipitate, second में precipitate का precipitate और थर्ड में precipitate फिर clear. So that is how they are distinguished, primary, secondary and tertiary amine.
This is SO2 only, huh? Don't make it 3, make it 2 only. SO2. ये SO2 है, SO3 नहीं है. Everybody done? Then I'll repeat the all three tests once again. All three reaction I'll repeat once. देखो फिर से. प्राइमरी अमाइन जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, इन अल्कलाइन मीडियम इट गिव्स यू अ क्लियर सॉल्यूशन, एंड इन एसिडिक मीडियम इट गिव्स यू प्रेसिपिटेट. फिर सेकेंडरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इट गिव्स यू अ प्रेसिपिटेट which further does not react with acid, so no reaction. टर्शरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है which is a precipitate, and in acidic medium it again dissociates. So in acidic medium it again dissociate to give you tertiary amine back, so we get a clear solution. तो प्राइमरी में we get clear and then precipitate, secondary में precipitate remains precipitate, tertiary में precipitate becomes clear. So that is how they are distinguished, primary, secondary and tertiary amines. और ज्यादातर हेंसबर्ग टेस्ट पूरा क्वेश्चन ही आता है, so you have to write on all the three reactions. या तो accordingly they can ask you what is action of benzene sulfonyl chloride on diethylamine, trimethylamine, या तो फिर n propylamine, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए. और पूरा टेस्ट आया तो 3 मार्क के लिए. टेस्ट में जनरल रिएक्शन लिख के एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इट इज अलाउड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Benzene sulfonyl chloride is also replaced by para-toluene sulfonyl chloride. अभी ये पूरे रिएक्शन को ये para-toluene sulfonyl chloride से भी डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में खाली एक स्टेटमेंट दिया है, पर सेम रिएक्शन होगा टोल्यूइन के साथ भी. अभी स्ट्रक्चर में खाली क्या फर्क आएगा कि बेंजीन para-toluene sulfonyl chloride में एक CH3 एडिशनल लिखना पड़ेगा. तो अगर तुम ये फॉर्म में लिख रहे हो ना तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे CH3 लिखना पड़ेगा और या तो पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. सो दे कैन आस्क यू गिव द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन यूजिंग para-toluene sulfonyl chloride, जो आज तक कभी पूछा नहीं है पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो सारे रिएक्शन सेम ही लिखने हैं, खाली ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें आगे ब्रैकेट में एक बार और CH3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. तो ब्रैकेट में यहाँ पे CH3 लिख दो बस, बाकी सब सेम रखो, एवरीथिंग विल बी सेम. या तो पूरा स्ट्रक्चर लिख के करना है तो वैसे भी कर सकते हो. ओके, बट दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन बाय यूजिंग para-toluene sulfonyl chloride. अभी रिसेंटली मुझे लगता है कोई MCQ में नीट जेई, आई डोंट नो वेयर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दैट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड is now replaced by, or it is another reagent which is used in place of benzene sulfonyl chloride is, or option में one of the option was para-toluene sulfonyl chloride, which is the answer. Okay, और ये जरूरी नहीं है तुमको वर्ड्स में दे, स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसे एब्रीवेटेड फॉर्म में दे सकते हैं. बेंजीन रिंग की जगह पे AR भी लिख सकते हैं, so it will be all one and the same. So copy down this note and then we'll go for the next property. Seventh chemical property we'll do, that is nitrous acid test.
Okay, we'll go to the next chemical property. Nitrous acid test. Now this is very very important and very favorite question for examiner. ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, है ना? How will you distinguish primary, secondary and tertiary amine using nitrous acid, or give nitrous acid test to distinguish primary, secondary and tertiary amine? अभी तुमको मालूम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि नाइट्रस एसिड, आई टोल्ड यू, कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड प्रिपेयर, इट गेट डीकम्पोज. तो उसको NaNO2 और डाइल्यूट HCl से उसी वक्त प्रिपेयर करना पड़ता है. और जब भी हम रिएक्शन में उसी वक्त प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने बोला था तुमको इन C2 लिखते हैं, SITU, इन C2 ऐसे लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ना, जब हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं, उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे. प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड. अभी नाइट्रस एसिड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl. ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे होता है. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा? फर्दर रिएक्शन ROH. यहाँ पे फर्दर क्या होगा? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, वी गेट अल्कोहल, वी गेट वाटर एंड वी गेट नाइट्रोजन गैस. तो जब भी प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेगा तो बबल्स दिखाई देंगे नाइट्रोजन गैस के, और इससे अल्कोहल प्रिपेयर होता है. नाउ दिस इज रिएक्शन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल आल्सो, नीट जेई में. तो याद रखना है, अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्राइमरी अमाइन एंड नाइट्रस एसिड, और अल्कोहल प्राइमरी अमाइन कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड. तो ये रिएक्शन वहां पे भी इंपॉर्टेंट है. So when primary amine react with nitrous acid, we get alcohol and bubbles of nitrogen gas. तो जब तुमने प्राइमरी अमाइन लिया और उसमें NaNO2 और डाइल्यूट HCl डाला और बबल्स दिखाई दिए, मतलब वो प्राइमरी अमाइन. अभी इसको, यही रिएक्शन को एक एग्जांपल लेके करो. इथाइल अमाइन लेके कंप्लीट करो. इथाइल अमाइन IUPAC नेम इज इथेन अमाइन. What will be the name of the product? Give me the name of the product obtained.
Okay, I'll repeat this. Nitrous acid test to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Nitrous acid is obtained by reacting NaNO2 and dilute HCl. Primary amine, when react with nitrous acid, how is this nitrous acid prepared? By reacting NaNO2 and dilute HCl at 0 degree Celsius और 273 Kelvin. यहाँ पे हमको अल्कोहल मिलेगा, will get water and nitrogen gas is evolved. अभी बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इंडिकेट करते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन था. अभी 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी अमाइन है. तीनों में तुम NaNO2 और डाइल्यूट HCl डालोगे, जहां पे भी बबल्स दिखाई देंगे उसका मतलब वो प्राइमरी अमाइन है. नाउ आई टोल्ड यू टू कंप्लीट दिस रिएक्शन यूजिंग इथाइल अमाइन. इथाइल अमाइन लेके रिएक्शन कंप्लीट करो. या गिव मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन आउट हियर. Give me the name of the product which is obtained. Ethanol, Mrunali, correct. The name of the product is ethanol, Om, correct. Okay. Yeah, Zen, everybody is correct. We'll get ethyl alcohol, ethanol. अभी देखो, यहाँ पे याद रखना कि अगर एनिलीन इज अ प्राइमरी अमाइन, एनिलीन इज प्राइमरी अमाइन, उसको जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करोगे, व्हेन यू रिएक्ट aniline with nitrous acid, we will not get phenol directly. पहले हमको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, जो हम लोग ने यूज किया था सेंट मेयर्स, केटामेन, फ्लोरोबेंजीन, फिनॉल, सब में हम यूज करते हैं. पर पहले रिएक्शन ये होगा कि विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस विल गिव यू फिनॉल, नॉट डायरेक्टली. तो अगर तुमको पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो इथाइल अल्कोहल लिखो. पर अगर पूछा एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड या NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl, तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, फिर लिखा है सेकेंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस देन विल गेट फिनॉल, नॉट डायरेक्टली फिनॉल. सो राइट डाउन दिस रिएक्शन एज अ नोट दैट एनिलीन react with NaNO2 and dilute HCl or nitrous acid will give you benzene diazonium chloride. So write this as a reaction note. This on further, this can be further converted to fluorobenzene, chlorobenzene, phenol. याद है ना, बेंजीन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम और रिएक्शन लर्न करेंगे इसके. ओके, बट यू फर्स्ट राइट अप टिल हियर ओनली. एवरीबॉडी कंप्लीट. नसी फर्दर सेकेंडरी अमाइन के लिए करेंगे, ये प्राइमरी अमाइन के लिए किया, अभी हम सेकेंडरी अमाइन के लिए रिएक्शन करेंगे. इथाइल अल्कोहल, अदर नेम इज इथेनॉल. इथाइल अमाइन का दूसरा नाम लिखो इथेन अमाइन.
keep on writing both names, common as well as IUPAC. See now, secondary amine के लिए, when secondary amine react with nitrous acid, अब यहाँ पे OH NH, this water molecule will go away. एरो पे हमेशा लिखना है NaNO2 dilute HCl 273 डिग्री सेल्सियस या तो 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे ये NO ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो, तो ये हो जाता है N नाइट्रोसो डाई अल्काइल अमाइन, और IUPAC में N नाइट्रोसो डाई अल्केन अमाइन या तो N अल्काइल अल्केन अमाइन ऐसे लिखेंगे. अभी साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये येलो कलर का इमल्शन देता है. तो अगर तुमको 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है और तुमने NaNO2 और डाइल्यूट HCl डाला, बबल दिखाई दिया तो प्राइमरी अमाइन, येलो कलर का इमल्शन मतलब ऑयली लेयर जैसा डेवलप हो गया तो वो सेकेंडरी अमाइन है, और कुछ भी नहीं हुआ, नो ऑब्जर्वेबल चेंज, तो टर्शरी अमाइन है. अभी देखो एक सेकेंडरी अमाइन का एक एग्जांपल लेके कंप्लीट करो. डाईइथाइल अमाइन when react with nitrous acid, okay, what will be the product? Complete the reaction and then give me the name of the product. First copy general reaction, then do the example. NO group is called nitroso group. NO group is nitroso. Okay, so N nitroso dialkylamine. So here this is a nitroso group, functional group NO. NO2 को हम कैसे बोलते हैं? नाइट्राइट. NO3 होता है तो नाइट्रेट. NO खाली हुआ तो नाइट्रोसो बुलाते हैं. Name of the product. What will be the name of the product? N nitroso diethylamine. Very good. IUPAC name बताओ. IUPAC name बताओ. What will be IUPAC name for this? N nitroso diethylamine का IUPAC नेम क्या होगा? N nitroso N ethyl ethanamine. Okay, yellow emulsion. N nitroso N ethyl ethanamine. N nitroso N ethyl, capital N, huh? N nitroso N ethyl ethanamine. Now see for tertiary amine, the reaction for tertiary amine. टर्शरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है
HNO2, तो एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट बन जाता है। अभी ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, many a times, many a books, they have given no reaction, which is wrong. No observable change. So there is no visible change, and it is said there is no reaction. Okay? Actually reaction हो रहा है, एक additional complex बन रहा है, पर there is no visible change. ऐसा होना चाहिए. So better write there is no visible change. पर बहुत सारी बुक में ऐसा ही लिखा है. It is said that there is no reaction. Okay? तो पहले क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे. अगर तीनों में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन आइडेंटिफाई करना है, अगर हमने NaNO2 और HCl डाला, बबल्स दिखाई दिया तो प्राइमरी अमाइन, येलो इमल्शन हुआ तो सेकेंडरी अमाइन, और कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो टर्शियरी अमाइन. अभी देखो ये एक एरोमेटिक अमाइन, ये एक एग्जांपल है टर्शियरी अमाइन का, कंप्लीट करना है. तो कंप्लीट दिस रिएक्शन, खाली एक एडिशनल कॉम्प्लेक्स बनाना है बस. वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट, water soluble nitrite salt. You can write name triethyl ammonium nitrite.